Dear students and viewers, Assalamu alaikum. Today's topic is about soaps and detergents. These soaps and detergents are cleaning agents and are mostly used for cleaning purpose. First we will start with soaps. A soap is a sodium salt of a long chain of carboxylic acids, or we can state that a soap is a sodium salt of a fatty acid and shows cleansing properties in water. The most important or the most common fatty acids or sodium salt of long chain of carboxylic used in soaps is sodium saturate and sodium palmitate. Sodium saturate and sodium palmitate. The soap is formed by action of strong alkali or strong base with fatty acids, or we can state that with weak acids, and the process used during the formation of this soap is called as saponification process. Soap is formed by saponification process, where strong base is reacted with a weak acid, or we can state that long chain of carboxylic acid or any fatty acid. As we know that these carboxylic acids are considered as the weak acids. Weak acid. As we are discussing about the fatty acids, these fatty acids are mostly common in fat or oil. When it is combined with strong base, it results in the formation of soap along with the formation of glycerol. The process is known as saponification. The said process can be done in laboratory also, where we take mustard oil, castor oil, or any other source of oil in a beaker
laboratory preparation. First we take about 20, 30, 50 ml of mustard oil in a beaker. हम सबसे पहले मस्टर्ड ऑयल को किसी बीकर में लेंगे, 50 ml हम मस्टर्ड ऑयल लेंगे। तो इस मस्टर्ड ऑयल के साथ हम to this mustard oil about 30 ml of sodium hydroxide is added. और उसके बाद हम क्या करते हैं, we start heating it. Heat the mixture with constant stirring. With constant stirring, हम लगातार इसको स्टायर करते रहेंगे, हिलाते रहेंगे जब तक till paste of soap is formed. Till paste of soap is formed. तो हमने पहले मस्टर्ड ऑयल को लिया, 50 ml मस्टर्ड ऑयल को हमने किसी बीकर में लिया। यहां पे हम एक बीकर को लेंगे, इसमें हमने 50 ml मस्टर्ड ऑयल को रखा या कैस्टर ऑयल को रखा या किसी और ऑयल को रखा। जो ऑयल यहां पे होना चाहिए वो मोस्टली वेजिटेबल ऑयल होना चाहिए, क्योंकि वेजिटेबल ऑयल इज द सोर्स ऑफ फैटी एसिड्स और लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोजाइलिक एसिड्स। तो इस मस्टर्ड ऑयल में हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड को ऐड किया, सोडियम हाइड्रोक्साइड को हमने इसमें ऐड किया और इसके बाद हम इसको हीट करेंगे। वी विल स्टार्ट हीटिंग इट, with constant stirring. Stirring is done with the help of glass rod. We start stirring it, constant stirring, जब तक कि इसमें एक सोप का एक पेस्ट नहीं बनेगा, पेस्ट ऑफ द सोप। और इसके बाद हम क्या करते हैं, हम इसमें we add 10 ग्राम of सोडियम क्लोराइड टू इट, 10 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड। और सोडियम क्लोराइड को हम क्यों इसमें डालते हैं, व्हाट इज द रीजन फॉर द एडिशन ऑफ दिस सोडियम क्लोराइड टू इट, ताकि जो सोप है, जो सोप एक्चुअली है, सोप एक्चुअली इस वक्त पेस्ट फॉर्म में है और सोप जो है वो एक्वस फॉर्म में है, वो एक्वस सोल्यूशन में है। तो ये पेस्ट जो है ये प्रिसिपिटेट आउट होनी चाहिए, ये अलग होनी चाहिए। इसके लिए हम क्या सोडियम क्लोराइड को ऐड करते हैं टू प्रिसिपिटेट और टू सेपरेट precipitate out or to separate out soap from aqueous solution। एक्वस सोल्यूशन से सोप जो है वो बाहर आनी चाहिए। इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम सोडियम क्लोराइड को ऐड करते हैं। इस तरीके से हम सोप को कहां बनाते हैं, लेबोरेटरी में बनाते हैं। तो इसके बाद हम देखेंगे कि हाउ दिस सोप वर्क्स, इस सोप का स्ट्रक्चर क्या है और ये सोप कैसे काम करता है, कैसे ये वर्क करता है। सोप इज कंपोज्ड ऑफ 2 पार्ट्स। जो सोप है इसमें 2 पार्ट्स होते हैं। सोप इज कंपोज्ड ऑफ 2 पार्ट्स। One of the part is called as hydrophobic part, means that part which aligns itself away from the water, and another part that is called as hydrophilic part, that part that aligns itself towards the water,
सोप में अभी हमने ये देखा कि सोप में जो एक पार्ट है, एक पार्ट इसमें सोडियम क्या है, और दूसरा पार्ट जो इसमें है वो किसका है, वो कार्बन चेन का है, एक पार्ट सोडियम का है, दूसरा पार्ट जो है वो किसका है, वो सोडियम, वो एक पार्ट सोडियम का है और दूसरा पार्ट जो है वो किसका है, कार्बन चेन का है। जो कार्बन चेन है, कार्बन चेन जो है, या जिसको हम हाइड्रोकार्बन चेन कहते हैं, हाइड्रोकार्बन पार्ट, दैट इज बेसिकली दैट पार्ट इज दैट हाइड्रोकार्बन पार्ट इज दैट इज वाटर हेडिंग पार्ट, और वी कैन से दैट इज हाइड्रोफोबिक पार्ट. And another part is there, that is hydrophilic part. Soap is composed of two parts. One is hydrophobic part, means that part that stays away from the water, or that is water repelling part, and another part is that is water loving part. Another part is there, that is water loving part, that aligns itself towards the water. या हम ये कहेंगे कि जो सोप है, सोप का जो एक पार्ट है, that aligns itself towards this grease or dust which lies in the cloth, and another part is that aligns itself towards the water. Soap has two parts, one is hydrophobic part, another is hydrophilic part. जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है, हाइड्रोफोबिक पार्ट जो है ये बेसिकली कौन सा पार्ट है, हाइड्रोकार्बन पार्ट है, हाइड्रोकार्बन पार्ट, या जो इसमें जो कार्बन चेन है, कार्बन चेन जो है, कार्बन चेन या लॉन्ग चेन ऑफ दिस, या जो फैटी एसिड की चेन है, फैटी एसिड, वो क्या है, वो एक्चुअली इसमें हाइड्रोफोबिक पार्ट है. और जो दूसरा पार्ट इसमें है, ये देखिए जो ये आयनिक पार्ट है, ये आयनिक पार्ट, यहाँ पे अगर हम देखेंगे सोडियम पे कौन चार्ज है, पॉजिटिव, और जो ये है ये CO है, इस पे कौन चार्ज है, नेगेटिव पार्ट है. ये कौन सा पार्ट है, ये बेसिकली हाइड्रोफिलिक पार्ट है. तो हम इसको ये कहेंगे कि जो आयनिक पार्ट है, या जो सोडियम का पार्ट है, सोडियम पार्ट, ये क्या है, ये हाइड्रोफिलिक पार्ट है. जो हाइड्रोकार्बन पार्ट है, ये किसकी तरफ अपने आप को अलाइन करता है, अवे फ्रॉम द वाटर. और जो हाइड्रोफिलिक पार्ट है, ये अपने आप को किसकी तरफ अलाइन करता है, इट अलाइन्स टुवर्ड्स द वाटर. और इसी को हम एक्चुअली कैसे दिखाते हैं, दिस hydrocarbon or hydrophilic part, these hydrocarbons are shown as like this. These are basically these vertices here show these are carbon atoms, or we can state that these are methylene groups, CH2 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 CH2. This is the carbon chain, hydrocarbon chain. This part, this negative part of the soap, this is shown by this particular part, or hydrophilic part, and this is hydrophobic part.
this soap molecule or the soap, it forms a cluster of soap molecules, where this particular part it aligns itself away from the water, and this particular part it aligns itself towards the water, and that particular cluster is known as mycel. That's known as mycel formation. This is this hydrophilic part. फॉर एग्जाम्पल किसी बीकर में हमने इस सोप को डाला है, तो इस बीकर में क्या है, पानी है, जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है, हाइड्रोकार्बन पार्ट जो है, ये वाला पार्ट, ये अपने आप को पानी से दूर रखता है, और जो इसमें आयनिक पार्ट है या सोडियम पार्ट जो है, आयनिक पार्ट जो इसमें है, या हम यहां पे आयनिक पार्ट भी लिख सकते हैं, आयनिक पार्ट जिसमें कैटायन और एनायन है, दिस इज एनायन, दिस इज कैटायन। ये आयनिक पार्ट जो जिसको हम दिस इट इज शोन बाय दिस हेड लाइक स्ट्रक्चर हियर, ये अपने आप को किस तरफ अलाइन करता है, पानी की तरफ अलाइन करता है। इस तरीके से जो सोप है ये एक क्लस्टर बनाता है, ये एक स्फेरिकल क्लस्टर और स्फेरिकल सेग्रीगेट बनाता है, स्फेरिकल सेग्रीगेट बनाता है। तो इस तरीके से स्फेरिकल एग्रीगेट बनाता है, स्फेरिकल एग्रीगेट बनाता है। तो इस तरीके से जो ये फॉर्मेशन होती है, जहां पर कि स्फेरिकल क्लस्टर बनता है या स्फेरिकल एग्रीगेट बनता है, इस स्फेरिकल क्लस्टर है, इस एग्रीगेट को हम क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड एज माइसील फॉर्मेशन। इट्स कॉल्ड एज माइसील फॉर्मेशन। जब भी हम किसी कपड़े को, किसी क्लॉथ को, जिसपे कि किसी किस्म का डर्ट हो या जिसपे किसी किस्म का ग्रीस हो, किसी किस्म की कोई गंदगी हो, when we drop that particular cloth in water, तो वहां पे क्या होता है, जो ये माइसील है, इसमें क्या होता है कि अगर क्लॉथ में फॉर एग्जांपल कोई डर्ट है या कोई ग्रीस है, जो सोप में जो ये हाइड्रोफोबिक पार्ट है, और वी कैन से दैट वाटर हेटिंग पार्ट, और दिस पार्ट इज आल्सो कॉल्ड एज ऑयल लविंग पार्ट और ग्रीस लविंग पार्ट, ये अपने आप को किसकी तरफ अलाइन करता है, ग्रीस की तरफ अलाइन करता है, और जो इसका वाटर लविंग पार्ट होता है या हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है, वो वाटर की तरफ अलाइन करता है। इस वजह से इस तरीके से क्या होता है, इस सॉल्यूशन में क्या होता है कि माइसील फॉर्मेशन बनता है। माइसील फॉर्मेशन की वजह से क्या होता है, जो ये ग्रीस है या जो ये डर्ट है या जो ये ऑयली पार्टिकल है, ये एक्चुअली किस में चला जाता है, ये सोप वाटर में चला जाता है, जिसकी वजह से जो सोप वाटर है ये क्या होता है, ये गंदा होता है, ये गंदा होता है, और फिर बाद में हम इसी सोप वाटर को बाहर फेंकते हैं। तो जो ये क्लॉथ है, ये क्लॉथ क्या होता है, ये क्लीन होता है। ठीक है, तो मैं फिर से रिपीट करूंगा, जो सोप है, सोप में एक्चुअली दो पार्ट्स हैं, देयर इज ए हाइड्रोफोबिक पार्ट एंड ए हाइड्रोफिलिक पार्ट। हाइड्रोफोबिक पार्ट इज हाइड्रोकार्बन पार्ट
और हाइड्रोफिलिक पार्ट जो है ये आयनिक पार्ट है या ये सोडियम पार्ट है। तो जब भी हम इस सोप को पानी में डालते हैं तो क्या होता है, जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है इट अलाइन्स इटसेल्फ अवे फ्रॉम द वाटर, और जो हाइड्रोफिलिक पार्ट है इट अलाइन्स इटसेल्फ टुवर्ड्स द वाटर। या हम ऐसा भी कहेंगे कि जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है ये अपने आप को अलाइन करता है किसकी तरफ, टुवर्ड्स द ग्रीस और टुवर्ड्स द oily particle which is present in the cloth, or we can state that this hydrophobic part is also called as grease loving part, or it's also called as oil loving part, because it aligns itself to the towards the oily particle or towards the grease particle, and this hydrophilic part it aligns itself away from the water. इस तरीके से क्या होता है कि ये जो सोप है ये इस वाटर में एक्चुअली क्या बनाता है, ये एक स्फेरिकल क्लस्टर बनाता है अपने मॉलिक्यूल्स का, या स्फेरिकल एग्रीगेशन बनाती है अपने मॉलिक्यूल्स की, जिनको हम माइसील्स कहते हैं। और इस माइसील की वजह से क्या होता है, जो ये डर्ट होता है, जो ये ऑयली पार्टिकल होता है, जो ये ग्रीस पार्टिकल होता है, ये किस में चला जाता है, ये सोप वाटर में चला जाता है, और इसकी वजह से जो सोप वाटर है ये गंदा हो जाता है। और जब ये जो ये ऑयली पार्टिकल या ग्रीस पार्टिकल जब ये सोप वाटर में चला गया तो जो कपड़ा होता है, कपड़ा क्या होता है, वो क्लीन हो जाता है, और यही सोप वाटर बैग में गंदा हो जाता है, और इसी सोप वाटर को हम बाहर फेंकते हैं। अलबत्ता जो ये सोप है इट ओनली वर्क्स विद हॉट वाटर, इट ओनली वर्क्स विद हॉट वाटर, इट कैन नॉट वर्क विद हॉट वाटर। तो हम ये कहेंगे जो सोप है इसकी जो क्लींजिंग एक्शन है वो काफी लिमिटेड है। इट कैन ओनली वर्क वेल विद सॉफ्ट वाटर एंड इट कैन नॉट वर्क वेल विद हॉट वाटर। तो उस पर्पज के लिए अनदर क्लीनिंग एजेंट और अनदर क्लींजिंग एजेंट जिसको हम डिटर्जेंट कहते हैं, इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो नाउ वी विल लुक इनटू डिटर्जेंट। इससे पहले कि हम डिटर्जेंट के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करें, तो अगर हम सोप को हॉट वाटर के साथ मिलाएंगे तो क्या होता है कि हॉट वाटर में एक्चुअली क्या होता है, उसमें बाइकार्बोनेट आयन्स होती हैं। तो बाइकार्बोनेट आयन जो है वो इस सोप के साथ मिलके एक्चुअली सकम बनाते हैं। सकम जो है दैट पर्टिकुलर सकम दैट रिड्यूसेस द क्लींजिंग एक्शन ऑफ दिस सोप। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो क्लोथ्स हैं वो एक्चुअली पूरी तरीके से क्लीन नहीं होती है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें डिटर्जेंट का इस्तेमाल करना पड़ता है। डिटर्जेंट जो है ये दोनों के साथ, ये सॉफ्ट वाटर के साथ भी काम करते हैं, ये हार्ड वाटर के साथ भी काम करते हैं। अलबत्ता जिस तरीके से सोप का क्लींजिंग एक्शन अभी आपने देखा कि सोप जो है सोप में जो पार्ट्स है ये एक्चुअली ग्रीस या ऑयल के इर्द गिर्द जमा होते हैं, क्लस्टर बनाते हैं, जिनको हम माइसील फॉर्मेशन कहते हैं। डिटर्जेंट भी यही माइसील फॉर्मेशन बनाता है। अलबत्ता जो डिटर्जेंट और सोप का जो स्ट्रक्चर है ये थोड़ा सा डिफरेंट है। तो जो सोप है, सोप्स में हमने यही देखा कि these are the sodium salts of higher fatty acids or these are the sodium salts of long chain of carboxylic acids। डिटर्जेंट्स जो है ये भी एक्चुअली सोडियम साल्ट्स है, बट these are detergents are sodium salts of these are sodium salts of
long chain of benzene sulfonic acid, or these are sodium salts of long chain of alkyl hydrogen sulfate. And show cleansing properties in water, but both types of the water, soft as well as in hard water. Detergents are sodium salts of long chain of benzene sulfonic acid, or sodium salts of long chain of alkyl hydrogen sulfate, and show cleansing property in water. तो हम यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाएंगे सोप का। CH3 C6H4, क्योंकि बेंजीन का यहाँ पे C6H4, C6H6 is the formula benzene. CH3, CH2, this is the formula of detergent or structure of detergent. अगर हम यहाँ पे इसका नाम लिखेंगे तो भी लिखेंगे सोडियम N decyl benzene sulfonate. Sodium N-2-decyl benzene sulfonate. Sodium means this part, sodium, N-2-decyl. Number of carbon atoms 11, 12 means 2-decyl. Dec means 10, 11 and 12 means 2, and this is a normal 2-decyl chain. मीन्स के जो कार्बन एटम्स हैं ये एक्चुअली लिंक हुए हैं इन ए स्ट्रेट चेन, एंड दिस इज बेंजीन. बेंजीन में क्या है, जो दो हाइड्रोजन एटम्स है दे आर बीन रिप्लेस्ड बाय दिस ग्रुप सल्फोनेट ग्रुप. बेंजीन by this group sulfonate group, benzene sulfonate, sodium and 2-decyl benzene sulfonate, and another is sodium and 2-decyl. This is decyl here. Number of carbon atoms is 10. This is 11, this is 12, 2-decyl, and this is sulfate here, sulfate. This is sulfate. तो डिटर्जेंट्स में आपने ये देखा कि जो बेंजीन की जो लॉन्ग चेन है इसको एक्चुअली किससे रिप्लेस किया गया है, इसको सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिप्लेस किया गया है. और यहां पर भी क्या है कि यहां पर भी लॉन्ग चेन ऑफ अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट, यानी दिस इज ए अल्काइल चेन, और इसमें इस चेन में एक जगह क्या लिंक हुआ है, सल्फेट ग्रुप लिंक हुआ है. तो इसको हम डिटर्जेंट कहते हैं. सोडियम N-2-decyl benzene sulfonate
सोडियम N2-डिकाइल सल्फेट। तो दीज आर द डिटर्जेंट्स। और डिटर्जेंट्स में हमने ये सिर्फ ये देखा कि वहां पर भी सोडियम साल्ट है। अलबत्ता जो चेन ऑफ जो लॉन्ग चेन ऑफ दिस कार्बन एटम्स है वहां पे क्या है, वहां पे सोप में हमने एक्चुअली क्या देखा, वहां पे हमने कार्बोक्सिलिक एसिड को देखा, लेकिन यहाँ पे हमने सल्फ्यूरिक एसिड को देखा। और इसके साथ इस चेन में एक जगह बेंजीन ग्रुप भी लिंक हुआ है। तो जो डिटर्जेंट्स है, डिटर्जेंट्स जो है, डिटर्जेंट्स का भी क्लीनिंग एक्शन वैसा ही है जैसा सोप का है। अलबत्ता जो डिटर्जेंट्स है ये दोनों के साथ, ये हार्ड वाटर के साथ भी मिलता है और ये सॉफ्ट वाटर के साथ भी मिलकर माइसिल फॉर्मेशन बनाता है। और जितना ज्यादा माइसिल फॉर्मेशन होगा उतना ज्यादा कोई भी क्लॉथ जो है, कोई भी कपड़ा जो है वो उतना ज्यादा क्लीन होगा। सो इट वॉज अबाउट सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। तो कभी कभी एग्जाम में एक क्वेश्चन भी आता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सोप्स एंड डिटर्जेंट्स, डिफरेंस बिटवीन सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। तो अगर हम देखें कि जो सोप्स है, डिफरेंस, सबसे पहले अगर हम यहां पर देखेंगे, सोप्स जो है, सोप्स आर द सोडियम साल्ट्स ऑफ long chain carboxylic acids or fatty acids, अगर हम डिटर्जेंट्स की बात करेंगे तो हम ये कहेंगे these are sodium salts of long chain benzene sulfuric acid और सल्फ्यूरिक एसिड्स। यहां हम ये भी लिखेंगे लॉन्ग चेन और लॉन्ग चेन अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट्स। तो जो सोप्स है इनमें जो आयनिक ग्रुप है, आयनिक पार्ट जो है, ये वाला पार्ट होता है। ये जो पार्ट है COO माइनस Na+, इस पार्ट में एक्चुअली इस वाले हिस्से में COO माइनस या C डबल बॉन्ड O माइनस, इस पे नेगेटिव चार्ज होते हैं और इस पे क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होते हैं। तो अगर हम यहां पे बात करेंगे तो इट इज SO3 माइनस Na+। इस वाले पार्ट में ये वाला पार्ट नेगेटिव होता है, या SO4 Na, ये वाला पार्ट आयनिक पार्ट होता है। और आयनिक पार्ट जो है ये हमेशा अपने आप को अलाइन किसकी तरफ करता है, इट ऑलवेज अलाइन्स इटसेल्फ टुवर्ड्स द वाटर। और जो हाइड्रोकार्बन पार्ट है या जो ये चेन वाला पार्ट है, हम ये कहेंगे जो चेन वाला पार्ट है, यानी यहाँ पे लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड्स और यहाँ पे लॉन्ग चेन बेंजीन सल्फ्यूरिक एसिड और लॉन्ग चेन अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट, ये हमेशा किसकी तरफ अलाइन करता है, डर्ट की तरफ अलाइन करता है, ऑयली पार्ट की तरफ अलाइन करता है, या ग्रीस की तरफ अलाइन करता है। तो सोप्स जो है ये एक्चुअली सूटेबल नहीं है, नॉट सूटेबल फॉर
washing purpose in hard water. हार्ड वाटर के साथ ये एक्चुअली क्या होता है कि ये अपनी जो प्रॉपर्टी है, यानी कि वॉशिंग प्रॉपर्टी और क्लीनिंग प्रॉपर्टी, ये वहां पे नहीं दिखा सकते, क्योंकि जब ये हॉट वाटर के साथ कंबाइन होता है तो क्या बनता है, स्कम बनता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो क्लीनिंग एक्शन है उसमें रुकावट पड़ती है। वेयर जो डिटर्जेंट्स है, डिटर्जेंट्स जो है, डिटर्जेंट्स आर suitable for hard water also. अगर hard water भी होगा तो उसमें भी ये क्या कहते हैं, ये अपनी क्लीनिंग एक्शन दिखा सकते हैं। सोप्स जो है, सोप्स आर बायोडिग्रेडेबल, बायोडिग्रेडेबल, बायोडिग्रेडेबल। तो बायोडिग्रेडेबल बेसिकली हमारे एनवायरमेंट में दो किस्म के सब्सटेंस है। कुछ सब्सटेंस को हम बायोडिग्रेडेबल कहते हैं, कुछ को हम नॉन बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। बायोडिग्रेडेबल एक ऐसे सब्सटेंसेस हैं जिनको हम ऐसे सब्सटेंस है जिनको हम यूजफुल पर्पज के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वाइल नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस ऐसे हैं जिनको हम यूजफुल पर्पज के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। वाइल जो डिटर्जेंट्स हैं, डिटर्जेंट्स आर, these are non-biodegradable. जो सोप्स है, इनका जो क्लीनिंग एक्शन है या क्लींजिंग एक्शन जो है वो वीक क्लींजिंग एक्शन, वाइल एज जो डिटर्जेंट्स है इनकी जो एक्शन है दैट इज स्ट्रॉन्ग क्लींजिंग एक्शन। तो दिस वाज अबाउट द डिफरेंस बिटवीन सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। Soaps are sodium salts of long chain carboxylic acids or sodium salts of higher fatty acids. इनमें जो आयनिक पार्ट होता है वो होता है CO minus Na+। Sodium detergents are sodium salts of long chain benzene sulfonic acid or long chain alkyl hydrogen sulfates. इसमें जो आयनिक पार्ट है वो होता है SO3 minus Na+, SO4 minus Na+। They are not suitable for washing purpose in hot water. hot water में ये अपनी जो प्रॉपर्टी है, अपना जो काम है वो नहीं दिखा सकते। जो डिटर्जेंट्स है दे आर सुटेबल फॉर वॉशिंग पर्पज इवन इन हॉट वाटर। दे आर बायोडिग्रेडेबल व्हाइल एज दे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल एंड दे हैव वीक क्लींजिंग एक्शन एज कंपेयर डिटर्जेंट्स, एंड डिटर्जेंट्स हैव स्ट्रॉन्ग क्लींजिंग एक्शन एज कंपेयर टू सोप्स। दिस वाज अबाउट द डिफरेंस बिटवीन सोप्स एंड detergents. Thank you.